सत श्री अकाल, मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज आवाज बंगाल की। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस गरिमामयी समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर इलाके के विकास और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर मंथन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से 3 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक शामिल हुए, जिनमें रानीगंज के विधायक श्री पार्थ घोष, पांडेश्वर के विधायक श्री जितेंद्र कुमार तिवारी और जमुड़िया के विधायक डॉक्टर बिजोन मुखर्जी मौजूद रहे। समारोह के दौरान रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जुगल किशोर गुप्ता, चेयरमैन, सेक्रेटरी समेत कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने तीनों विधायकों को शॉल बुके देकर सम्मानित किया। चैम्बर के सदस्यों ने विधायकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। सम्मान समारोह के साथ साथ यह आयोजन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का एक बड़ा मंच भी बना। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से तीनों विधायकों को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मांग पत्र में रानीगंज, पांडेश्वर और जमुड़िया क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए विधायकों से हस्तक्षेप की मांग की गई। तीनों विधायकों ने भी चैम्बर को भरोसा दिलाया कि वे इन मुद्दों को सरकार के सामने मजबूती से रखेंगे। इस सफल आयोजन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि क्षेत्र के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों और व्यापारी वर्ग का एक साथ आना कितना जरूरी है। अब देखना होगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सौंपे गए इस मांग पत्र पर आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई होती है। 2021-এর 14ই মে রেজাল্টের পর থেকে কদিন, আর আমাদের 4 তারিখ থেকে 14ই মে বা আজকে 16ই মে অবধি ধরে নেন। আপনি দেখে নেন কটা মার্ডার হয়েছিল, পরিসংখ্যান অনুযায়ী কটা লোক ঘর ছাড়া হয়েছিল আর কটা লোককে বাড়ি থেকে মেরে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তার পরিসংখ্যান আপনারা নিন। আর এই মাসের এরপরের পরিসংখ্যান নিন। হাইকোর্টে ওনারা মামলা করেছিলেন, হাইকোর্টে কোনো রকম কোনো অর্ডার ওনারা পাইনি। আমরা হাইকোর্টে সেই সময় 2021-এ অর্ডার করেছিলাম, মামলা করেছিলাম। হাইকোর্ট অর্ডার দিয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নেই, শাসকের আইন চলছে, মানে মমতা ব্যানার্জির আইন চলছে, আইন বলে কিছু নেই। তো কলকাতা হাইকোর্ট স্বীকার করেছিল যে পোস্ট পোল ভায়োলেন্স তৃণমূল কংগ্রেস করেছে এবং তৃণমূল কংগ্রেস তার মানে ভায়োলেশনের জন্য এবার তাদেরকে সাফার করতে হলো 26-এ। আর কলকাতা হাইকোর্টের লাস্ট এই 2 দিন আগের অর্ডার আপনারা দেখে নেন। মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি ছিলেন তৎকালীন, উনি নিজেকেই মামলা করেছিলেন, তারপরে কি রেজাল্ট দেখে নেন। তো কোর্টই স্বীকার করছে না পোস্ট পোল ভায়োলেন্স হয়েছে বলে। আমি আর কি বলবো। দেখা যাচ্ছে বড় অফিস থেকে চালাই হচ্ছে তৃণমূলের লোকজন, যারা তৃণমূল থেকে নির্বাচিত হয়েছে, নির্বাচিত হয়নি, সার্টিফিকেট করে জোর করে নিয়েছিল আর কি, জোর করে ভোট করিয়ে। তো এখন তারা পরিষেবা পাচ্ছে না। এখন তৃণমূলের লোকজন যারা আছে এখানে কাউন্সিলর, তারা এখান থেকে পালিয়েছে। তো আমি তো বেশ কয়েকটা জায়গায় বললাম 2-3 দিনের মধ্যে ওরা এখানে উপস্থিত হোক। আর আমাকে যদি ওদেরকে উপস্থিত করাতে হয় তাহলে আমি ওপেন মার্কেটে কিন্তু ওখানে দাঁড় করে খান করে উপোস করাবো ওদেরকে। কারণ হচ্ছে যে মানুষ তাদেরকে সেই সময়ে কিছু লোক তো ভোটও দিয়েছিল, বা মানুষ জানে তারা নির্বাচিত কাউন্সিলর, তারা নির্বাচিত কাউন্সিলর কেন পরিষেবা দেবে না? আর পরিষেবা দেওয়াটা তাদেরই কাজ। আমাদের যখন মিউনিসিপ্যালিটি হবে, আমাদের যদি মানুষ মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশনে যদি নির্বাচিত করে, তো আমরা যা পরিষেবা দেওয়া সেটা করব। কিন্তু তার বাইরেও মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের হাতে না থাকলেও তাও যদি পরিষেবা দেওয়ার মতন আমাদের যদি কোনো রকম স্কোপ থাকে অন্যরকমভাবে, সেটাও আমরা চেষ্টা করছি এবং সেটা দেবো। রানীগঞ্জবাসীর কোনো রকম কোনো ক্ষতি হতে আমরা দেবো না। আপনারা জানেন যে আমি বলেছিলাম 4 তারিখের পরে লুঙ্গি বাহিনী লুঙ্গি খুলে দেবো। তো লুঙ্গি বাহিনীগুলো খুঁজে পাচ্ছি না, লুঙ্গি বাহিনীগুলো গেল কোথায় সেটা আমার দেখার বিষয় আছে। আর লুঙ্গি বাহিনী যে হেড ছিল ওখানে শেখ সাজাদা, সে হঠাৎ ভয়ে পালিয়েছে। ওকে তো কেউ মারতেও যায়নি, ওর বাড়িও কেউ অ্যাটাক করে, ওকে থ্রেটও করেনি। ওকে আপনার মাধ্যম দিয়ে বলছে এসে মিউনিসিপ্যালিটি ইমিডিয়েট খোলার ব্যবস্থা করবে, যদি না খুলেছে আমি কিন্তু অন্যরকম ব্যবস্থা করাবো। মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবা সাধারণ মানুষ যেন পায়, মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবা যেন সাধারণ মানুষ থেকে বঞ্চিত যেন না হয়। কাউন্সিলর, কারণ আমি সার্টিফিকেট দিতে পারি, কিন্তু এমএলএ সার্টিফিকেট সব জায়গায় কাজে লাগে না। অনেক জায়গাতে কাউন্সিলরই না, চুরি করলে তো আমরা ধরবো। তো তার জন্য আপনার মাধ্যম দিয়ে বলছি আমাকে যেন বাধ্য না করা হয়। ওনারা যেমন কাউন্সিলর ছিলেন এখান থেকে পারি, যে সব দুনিয়ার যারা নাম শুনেছিলেন একসময় তারা এখন কেউ নেই। বড় বড় নেতা সব ছিল 3 তারিখ অব্দি, বড় বড় ফেসবুক বড় কিছু বলছিল 4 তারিখের সকাল অব্দি। তারপর 4 তারিখ দুপুর থেকে
তারা হাওয়া কোথায় গেল আমি জানি না, বিদেশে পালিয়ে গেল কিনা সেটাও জানি না, কিন্তু ওদেরকে আমি বলছি আপনাদের মাধ্যম দিয়ে ইমিডিয়েট আসুক। যদি ওদের কোনো সমস্যা হয় এখানে আসার পরে কাজ করতে, তার দায়িত্ব আমি নেবো। কোনো থ্রেট ফেটের কোনো ব্যাপার না, কোনো ভয়ের কোনো ব্যাপার না, নির্ভয়ে কাজ করুক। আর যদি এটা না করে তাহলে কিন্তু আমি তার এগেইনস্টে ব্যবস্থা নেবো। দেখার কিছু নেই, চেম্বার অফ কমার্স থেকে তো একটা ডিমান্ড ছিলই। এই চেম্বার অফ কমার্সে এই ডিমান্ড আগের বারে 2021 দিয়েছিল তৃণমূলের আমাদের যিনি ছিলেন মন্ত্রী, আমাদের এমএলএ সাহেব সেই সময়, তো ওনারা ফুলফিল করেননি। আমার কাছে আশা আছে, সিঙ্গেল ইঞ্জিন সরকার হয়েছে, বিজেপি প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যে এসছে, প্রথমবার এখান থেকে আপনার ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেট জিতেছে। তো মানুষের আশা আছে, সেই আশা পূরণ করতে হবে। তারা লিখিতভাবে দিল, সব কথা অনেক সময় মনে থাকে না, এমনভাবে লিখিতভাবে সুন্দরভাবে লিখে ওরা দিয়েছেন যাতে কিনা ওরা পড়লে আমি অ্যাটাকলেস বুঝতে পারি ওনারা কি চাইছেন। देखिए अभी कितना दिन हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 8 दिन में 80 साल का प्रॉब्लम हम बोल रहे हैं सॉल्व हो जाएगा। 80 साल का प्रॉब्लम है, तो अभी अब देखिए जो थाना है, सब थाना लोग से खबर लीजिए। आप लोग तो रिपोर्टर है, किसको किसको अरेस्ट किया, क्या चीज के लिए अरेस्ट किया, तुरंत एक्शन हो रहा है और एक्शन होगा भी और होना भी चाहिए और फ्यूचर में भी होगा। आप देखा है कि हम माइक में बोला है, आज भी यहाँ पर बोला है, सब जगह बोला, हम खुद बोला है, मेरा आदमी भी बोल रहा है। कोई भी आदमी अगर किसी से गलत पैसा मांगेगा तो तुरंत FIR करेगा, थाना उसको एक्शन लेगा, 1 घंटे का अंदर थाना उसको घुसाएगा। अगर थाना नहीं घुसाएगा तो उसी को यहाँ से हम ट्रांसफर करेगा। প্রপোজাল দিয়েছি এবং সেই প্রপোজাল দেখুন, মিউনিসিপ্যালিটি আলাদা আমি বললে হয় না, আইনি প্রক্রিয়া আছে এবং সেই আইনি প্রক্রিয়াটাকে সামলে সেটা আমার ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভেল লাগবে। এই ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভেলের জন্য অনেক কিছু, আর পুরো ক্যাবিনেটই আমার তৈরি হয়নি। মানে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির এখন 5 জন মন্ত্রী, পুরো যে 43 জন মন্ত্রী হবে তার তো ক্যাবিনেট এখনো তৈরি হয়নি, মন্ত্রী সবাই তৈরি হয়নি পুরোপুরি। তো এগুলো হতে গেলে ইনস্ট্যান্টলি কিছু হয় না। প্রপোজাল আমি অলরেডি দিয়েছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলেছি এবং সেটা আমি আশা করছি করাবো, কিন্তু সেটা করাতে গেলে একটু সময় লাগবে, সেই সময়টা এখনো আসেনি, সেটাও আসতে হবে পুরোপুরি। देखिए अरेस्ट जारी रहेगा या ये तो कानूनी प्रक्रिया है और किसको पूरा अरेस्ट किया है उसका लिस्ट भी हमको मालूम भी नहीं है, मेरा उसमें जाना भी नहीं है। लेकिन जो प्रशासन का काम है वो प्रशासन का काम करेगा। पुलिस जिसका खिलाफ कॉम्प्लेन मिलेगा, पुलिस जो देखेगा जो गलत काम कर रहा है पुलिस दे रहा है तो पुलिस एक्शन लेगा। पुलिस का जो काम है पुलिस करेगा। पुलिस अभी इंडिपेंडेंटली काम कर सक रहा है, इतना दिन पुलिस इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाया। आप लोग दो यहाँ इंस्पेक्टर इंचार्ज है, वहाँ OC है, तो पूछ लीजिए हम क्या इंटरफेयर करता है, कभी कोई रिक्वेस्ट किया कि नहीं। और भाजपा का आदमी को लेके गया, हमको फोन किया तो भी हम फोन करके नहीं बोला जो भाजपा का आदमी है आप उसको पार्शियलिटी कीजिए, ये भी हम नहीं बोला। हम बोला है जो कानून में जो है वो कीजिएगा, जिसका अगेंस्ट में FIR होगा आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। पुलिस अभी तक देखिए पुलिस पूरी इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, क्योंकि पुलिस का ऊपर कोई दबाव कोई गवर्नमेंट का कोई कहीं से भी नहीं है जी इसको करो उसको करो ये करो वो करो। तो अभी इसलिए पुलिस इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और पुलिस को अगर इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए गवर्नमेंट दे देगा, जैसे वो लोग किया था कि नहीं दिया, पुलिस को पूरा कब्जा में रखा था, तो उसके लिए पुलिस भी गलती उल्टा सीधा काम किया, लेकिन पुलिस इस बार सही काम करेगा क्योंकि पुलिस इंडिपेंडेंटली काम करेगा। मैंने निर्वाचन से पहले आप लोगों को कहा था, भाजपा का उम्मीदवार होने के नाते अगर भाजपा कैंडिडेट जीतता है, शाम को 4 बजे के बाद 4 तारीख 4 मई के बाद से जमुरिया में इलीगल कोल स्मगलिंग बंद हो जाएगा और आपका सैंड स्मगलिंग भी बंद हो जाएगा। तो दोनों मैंने बंद करवा दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों का पास या किसी के पास नया कोई कंप्लेंट नहीं आया होगा कि ऐसा कोई हुआ है। दूसरा बाकी रहा आपका जो सवाल भूमि वाला, आप वेट कर लीजिए कुछ दिन, जैसे मेरे पास रिपोर्ट आएगा या हमारा CM जितना एक्टिवली काम कर रहा है ये भी कुछ दिन में बंद होगा। आप बेफिक्र रहिए, एक बेहतर बंगाल बनाने में, बेहतर जमुरिया, बेहतर रानीगंज बनाने में हम लोग कोई कसूर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा भाजपा वाले हैं जो ए पार्टी विथ ए डिफरेंस कहलाते हैं। बिल्डिंग प्लान नहीं दिया जा रहा है। पार्थो घोष जी के नेतृत्व में आज सुबह ही हम लोगों ने DM के साथ हमारी जो मीटिंग थी वहां सबसे पहले यही मुद्दा हम लोगों ने उठाया था कि ये आपको बंद करना पड़ेगा। और तो जी ने जब पूछा कि ये बंद क्यों कहा किया जा रहा है, तो उन लोगों ने बताया कि एक एक्सपर्ट कमेटी थी, उन लोगों ने ऐसा रिपोर्ट दिया, उसके आधार पर हम लोग ये कर दिए हैं। अब दूसरा रिपोर्ट हम लोग भी मांगे हैं, देखते हैं। तो हम लोगों ने आज कहा है कि रिपोर्ट मांगना और रिपोर्ट अपने मन मुताबिक मंगवाना ये दोनों अलग है। अब रिपोर्ट मांगने नहीं है,
रिपोर्ट अपने मन मंगवाना पड़ेगा, जिससे कि ये चालू हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि पार्थो घोष जी पर आपने जो विश्वास जताया है, आने वाले 2-3 महीने में, यही अगले मीटिंग तक 2 मीटिंग और यदि जिला स्तर पर जब होती है, तब तक हम लोग किसी न किसी हाल में ये जो बैन लगा हुआ है इसको हम लोग रिवोक करवा लेंगे। जरूर ये जो एमलगमेशन हो गया था रानीगंज म्यूनिसिपैलिटी का, जमुरिया का, कुल्टी का, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। पार्थोदा से मैंने बात किया है, विजन से बात किया है, डॉक्टर साहब से भी बात किया है। ये तीनों लोगों की अपनी इच्छा है कि जो म्यूनिसिपैलिटी का जो दर्जा था वो पुनः वापस मिल जाए। अब ये कैसे किया जाए, क्या किया जाए, ये थोड़ा समय लगता है। इसके लिए इनको भी बहुत से एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी, कानून में अमेंडमेंट करना। लेकिन मैं खेतान अंकल से एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, जो मांग आपने आज यहाँ रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रखा है, मैं चाहता हूं ये जो बाइफरकेट करने का जो मामला है, ये आप फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, जिसमें आपका आसनसोल भी है, उससे भी एक बार ये मांग करवा दीजिए कि रानीगंज जमुरिया को अलग किया जाए, जिससे कि बाद में आपके आसनसोल के चैम्बर वाले हमारा गर्दन न पकड़े कि नहीं आप हमारे आसनसोल को छोटा क्यों करेंगे। तो ये आप देखिए, मैं इसमें टेक्निकल एक रिक्वेस्ट आपसे करने के लिए आया हूं। देखिए, कोल बियरिंग लैंड जहां रहेगा, देश की प्रगति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और आप ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते कि ओपन कास्ट माइंस कहीं नहीं खुले। लेकिन एक बात है, सरकार ये मौका आपको जरूर देती है, कहीं भी ओपन कास्ट माइन खुलने से पहले वहां पर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का पॉल्यूशन का हियरिंग होता है, और हमारी ये विडंबना है कि उस हियरिंग में हम लोग पार्टिसिपेट ठीक से करते नहीं। अपनी आपत्ति यदि कहीं भी ओपन कास्ट माइन खोलना हो, तो उसके पहले इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए जो हियरिंग होता है, पब्लिक हियरिंग होता है, वहां पर जो कंसर्न है, जिस कारण से आप इसे रोकना चाहते हैं, उस कंसर्न को वहां पर यदि जाके हम लोग नोट कराएं, तो शायद इसको हम लोग रोक पाएंगे। क्योंकि जब तक अपनी जो दिक्कतें हैं, अपनी जो आशंकाएं हैं, उसको उस फोरम पर यदि हम लोग नोट डाउन नहीं करा पाते हैं, तो केवल ऐसे कह देना कि ना ये नहीं खुलना चाहिए, मेरे ख्याल से जब लॉजिकल डिस्कशन होगा तो शायद ये कहना संभव नहीं हो पाएगा। कैसे हम लोग कह सकते हैं कि देश को की प्रगति में हम बाधक बन सकते हैं। लेकिन वहां पर यदि हम जाके समझा पाए अपने बात कि रानीगंज में पॉल्यूशन की ये स्थिति है, और यदि नया ओसीपी खुलता है तो ये समस्याएं हो सकती है। हमारे डॉक्टर हैं, पिछले 20 वर्षों में हार्ट डिजीज जिनका हुआ है, एक सर्वे करके पॉल्यूशन के कारण कितने लोगों का हार्ट डिजीज हुआ है, आज से 25 साल पहले वो डाटा क्या था, अभी वो डाटा क्या है, ये पूरा डाटा जुगाड़ करके, पूरा तैयारी करके यदि पूरा डाटा को वहां पर रखा जाए, तो मेरे ख्याल से पॉल्यूशन क्लियरेंस के लिए जो हियरिंग होता है, उस हियरिंग में ही हम लोग उसको, माने वो जो मंशा होगी नए ओसीपी को खोलने के लिए, उसको शायद हम लोग रोक सकते हैं। इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि ये डाटा अब नया कहीं ओसीपी खोलने के लिए जब प्रयास होगा, उसके पहले जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं या हेल्थ की जो समस्याएं बढ़ी हैं ओसीपी के कारण, इसका एकदम पूरा डाटा यदि पहले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स रेडी रखे या एक्सपर्ट कमेटी बना दे, वो लोग। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।